Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत स्कंद 3 अध्याय 13 भगवान वराहदेव का आविर्भाव। श्लोक क्रमांक 37। So what is the way? I just recite या कोई recite करेगा, repetition होगा? How is usually the way? Hare Krishna Prabhu, no repetition. We'll just read. So I'll read or somebody takes that service, or I'll only continue? You can continue. Prabhu. If you want, we will read. I'll continue. Okay. Thank you, Prabhu. Nanu दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीयदंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतो सत्याभसत्यं चितयोऽसवो हि ते। Moreover, O Lord, the repetition of your appearance is the desire for all kinds of initiation. Your neck is the place for 3 desires, and your tusks are the result of initiation and the end of all desires. Your tongue is the prior activities of initiation. Your head is the fire without sacrifices as well as the fire of worship, and your living forces are the aggregate of all desires. Text 38. Samosturehta सवनान्वयवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टबन्धनः. O Lord, your semen is the sacrifice called Soma Yajna. Your growth is the ritualistic performance of the morning. Your skin and touch sensations are the 7 elements of the Agnishtoma sacrifices. Your bodily joints are the symbols of various other sacrifices performed in 12 days. Therefore, you are the object of all sacrifices called Soma and Asoma, and you are bound by Yajna only. Purport. There are 7 kinds of routine yajnas performed by all followers of Vedic rituals, and they are called Agnishtoma, Atyagnishtoma, Ukta, Shodashi, Vajpeya, Atiratra, and Aptoryama. Anyone performing such yajnas regularly is supposed to be situated with the Lord.
But anyone who is in contact with the Supreme Lord by discharging of devotional service is understood to have performed all different varieties of yajnas. Text 39. Namo namaste khila mantra devata द्रव्याय सर्वकर्तवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः. O Lord, you are the Supreme Personality of Godhead and are worshipable by universal prayers, Vedic hymns and sacrificial ingredients. We offer our obeisances unto you. You can be realized by the pure mind freed from all visible and invisible material contamination. We offer our respectful obeisances to you as the supreme spiritual master of knowledge in devotional service. Purport. The qualification of bhakti or devotional service to the Lord is that the devotee should be freed from all material contaminations and desires. This freedom is called vairagya, or renouncement of material desires. One who engages in devotional service to the Lord according to regulative principles is automatically freed from all material desires. And in that pure state of mind, one can realize the Supreme Personality of Godhead. The Personality of Godhead, being situated in everyone's heart, instructs the devotees regarding pure devotional service so that he may ultimately achieve the association of the Lord. This is confirmed in the Bhagavad Gita 10.10. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते. To one who constantly engages in the devotional service of the Lord with faith and love, the Lord certainly gives the intelligence to achieve him at the ultimate end. One has to conquer the mind, and one may do it by following the Vedic rituals and by performing different types of sacrifices. The ultimate end of all these performances is to attain bhakti, or the devotional service to the Lord. Without bhakti, one cannot understand the Supreme Personality of Godhead. The original Personality of Godhead or his innumerable expansions of Vishnu are the only objects of worship by all the Vedic rituals and sacrificial performances. Hare Krishna. So, Hindi, English? हिंदी प्रभु. हिंदी. सो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि जब भी हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्र हमें हमेशा एक कन्वर्सेशन के रूप में मिलता है. कोई भी शास्त्र आप देख लीजिए, भगवद गीता देख लीजिए, भागवत देख लीजिए, ये हमें सब एक आदान प्रदान, वाक्यों का या शब्दों का आदान प्रदान. हम भागवतम में देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो कथानक है वो सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि के बीच में. सूत गोस्वामी बता रहे हैं उन्होंने परीक्षित महाराज, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से क्या सुना. सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अरे विदुर और मैत्रेय के बीच में ये संवाद हुआ. मैत्रेय मुनि उस कन्वर्सेशन में बता रहे हैं अरे पता है क्या ऐसा हुआ था कि ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में संवाद हुआ. उस ब्रह्मा जी और भगवान के बीच के संवाद के बीच में ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद आता है. तो ये सारे संवादों के बीच में हम देखते हैं हमें ये भागवतम मिलता है. इट्स ऑल अ कोरिलेशन ऑफ कन्वर्सेशंस. सो हम जब भी कोई बात कहते हैं उसकी पुष्टि के लिए देखते हैं हम, जैसे भागवतम आगे आता है, सुत गोस्वामी अपने से कुछ नहीं बता रहे, उन्होंने जो सुखदेव गोस्वामी से सुना वो वही बता रहे. सुखदेव गोस्वामी भी वही बता रहे हैं जो मैत्रेय मुनि ने बताया, हालांकि उनको बताने की जरूरत नहीं है. सुखदेव गोस्वामी इज फार हायर सिचुएटेड देन मैत्रेय मुनि. मैत्रेय मुनि भगवान और ब्रह्मा जी के बीच के संवाद के बारे में बता रहे हैं. सो हर कोई किसी न किसी माध्यम से पीछे कनेक्ट हो रहा है और इसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा. गौर करने लायक बात यह है कि यहाँ पे कोई भी किसी के शिष्य नहीं है. सो मैत्रेय मुनि ब्रह्मा जी के शिष्य नहीं है, नारद के शिष्य नहीं है. यस. सूत गोस्वामी शिष्य, इन दीक्षा शिष्य सुखदेव गोस्वामी के नहीं है.
तो समझने लायक बात क्या है, दीक्षा का मूल अर्थ है शिक्षा। दीक्षा, ये हम देखते हैं आज हम इन इस्कॉन वी अंडरस्टैंड दीक्षा एज गुरुदेव इज गिविंग माला एंड समबडी एक्सेप्ट्स दैट माला, एक न्यू नेम, और उसके बाद में वो दीक्षित कहलाते हैं। लेकिन अगर हम भागवत देखेंगे, भगवत गीता का मूल कन्वर्सेशन कथानक क्या है, संजय और धृतराष्ट्र। अब संजय भगवान कृष्ण के शिष्य नहीं है, लेकिन वो सुन रहे हैं। न ही अर्जुन भगवान कृष्ण के शिष्य है, वो फ्रेंड है, भक्तों में सखा चेती। सो गुरु शिष्य परंपरा, ये शिक्षा की परंपरा ज्यादा है न कि दीक्षा की। और हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भी यही देखते हैं। हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के बाद में गौर किशोर दास बाबा जी ये भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षित शिष्य नहीं है। षड गोस्वामियों के बाद हमारे पास जगन्नाथ दास बाबा जी आते हैं, वो डायरेक्ट दीक्षित शिष्य नहीं है, उन्होंने शिक्षाएं ली, उन शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने उसी शिक्षा को सही रूप में ग्रहण किया और आगे बढ़ाया। So these are very two important things. One is Diksha is not a question of physical Diksha, it's a question of शिक्षा। दूसरा, हम जब भी शास्त्रों के बारे में बात करते हैं, हमारे पास एक पिछला कोटेशन होना चाहिए कि मैं ये कहां से ले रहा हूं, ये मैं कहां से बोल रहा हूं। So यहां पे बात आ रही है, अब द इनर मोस्ट कन्वर्सेशन इज ब्राह्मणों और भगवान के बीच का संवाद। भगवान वराहदेव आए और देखिए कथानक कितना सुंदर है। इसके पिछले के थोड़े श्लोकों में ब्रह्मा जी स्वयंभुव मनु को कहते हैं, अरे आप प्रजोत्पादन करो, लेकिन बाद में कहां बैठना है उन्हें, वो देखते हैं, अरे पृथ्वी तो रसातल में चली गई। सर यहां पे दो चीजें हैं, पृथ्वी गर्भोदक सागर में डूब गई है और ब्रह्मा जी क्रिएट कर ही रहे हैं। हम ब्रह्मा जी को भगवान से वरदान मिला है। अगर हम सेकंड कैंटो पढ़ेंगे, थर्ड कैंटो का भी प्रथम भाग पढ़ेंगे, भगवान को ब्रह्मा जी से मिला है वरदान कि आपका क्रिएशन परफेक्ट होगा। अब आपका क्रिएशन परफेक्ट है तो पृथ्वी गर्भोदक सागर में कैसे चली गई? अगर पृथ्वी गर्भोदक सागर में गई तो कहां से क्रिएशन परफेक्ट है? गड़बड़ तो हो ही रही है। और ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं, हाँ भगवान ने ये तो बोला था कि मेरा सब कुछ परफेक्ट होगा, फिर अब पृथ्वी गर्भोदक सागर में कैसे चली गई, अब इसका करे क्या? ये सोचते सोचते वराहदेव आते हैं ब्रह्मा जी के नाक से। वेरी वंडरफुल थिंग्स। यस, कि एक तो अगर भगवान कहेंगे भी सब कुछ बढ़िया होगा, द नेचर ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड इज गड़बड़ होगा ही होगा। हम देखते हैं ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन आगे जा करके उत्तम को जब यक्ष मारते हैं तो ध्रुव महाराज इतने क्रोधित हो जाते हैं कि सारे यक्षों के कुल का ही नाश करने के लिए चले जाते हैं। अब हम जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये आध्यात्मिक शिष्टाचार के पूरा विरुद्ध है। तो ध्रुव महाराज इतने कैसे क्रोधित हो गए, वो भी भगवान का दर्शन करने के बाद? ये तो बात हजम नहीं हुई। यहाँ पे हम हाजमला भी नहीं दे सकते। फिर ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन करने के बाद कोई क्रोधित कैसे हो सकता है? So we have to understand the nature of this material world, कि यहाँ पे सब कुछ हो सकता है और होता भी है। The uncertainty of this material world is the driving factor for a jiva to come closer to Krishna. भगवान ने अनसर्टेनिटी क्यों रखी है? ताकि जीव कभी भी ये न सोचिए अगर भगवान या गुरु हमें, बेटा तेरे साथ अब कुछ अनिष्ट नहीं होगा, हम तो 16 माला करना ही छोड़ देंगे। यस, तेरे साथ कुछ अनिष्ट नहीं होगा, हम तो 16, अरे यार हो गया, लाइफ बन गई मामू। यस,
सो दैट भय क्यों है? भय कि अरे इस भौतिक जगत में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ है ब्रह्मा जी भगवान के डायरेक्ट शिष्य हैं और बेटे भी हैं, और वो ऐसे बेटे हैं जिनकी मां नहीं है, सिर्फ पिता है। और वो भी भगवान के द्वारा स्वयं वरदान प्रदत्त है कि अरे आपका क्रिएशन परफेक्ट होगा। और अभी पहले मनु की चर्चा चल रही है, स्वयं भूव, और उसको स्थान कहां दो रहने के लिए। सो ब्रह्मा जी सिचुएशन इज एग्जैक्टली लाइक कोई ऐसा पिता जो बच्चे को जन्म देता है, लेकिन वो इतना कंगाल है कि उसका खुद का घर नहीं है और बच्चे के लिए उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करेगा? तो स्वयंभू मनु आ गए, उनके बाद में उनकी पत्नी शत्रुपा आ गई। शत्रुपा आने के बाद में, अच्छा मैं कहां पे रहूं? अच्छा आप कहां पे रहो? पृथ्वी कहां गई? अरे कहां गई पृथ्वी? पृथ्वी गायब। और तब भगवान आते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कृष्णा डील्स विथ हिज डिवोटीज। भगवान कभी भी वरदान दे करके भाई तेरे साथ कुछ अनिष्ट नहीं होगा ऐसे नहीं जाएंगे। भगवान का ये वरदान देना कि तेरे साथ कुछ अनिष्ट नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है? कि ये भौतिक जगत इतना कड़वा हो कि आपके साथ अनिष्ट हो रहा हो तो भी मैं आकर के सब ठीक करूंगा। दैट इज माय प्रॉमिस। तो जब ब्रह्मा जी व्यथित हैं, अरे अब क्या होगा क्या? इमेजिन ब्रह्मा जी सिचुएशन, हमारी सिचुएशन। अगर हमारा एक बेटा है और हम उसको खाने रहने और बेसिक कम्युनिटीज के लिए कुछ नहीं दे सकते, तो हमारी क्या सिचुएशन होगी? हम कैसे अपने आप को पिताजी बुलवाएंगे? तो ब्रह्मा जी फिर ये आते हैं, और कहां से आता है? नाक से। हमारी नाक से क्या क्या आता रहता है? देखिए शरीर के 9 रंध्र हैं और 9 रंध्रों से आउटपुट जो आता है वो कभी किसी को कुछ पसंद नहीं है। सुबह उठेंगे आंखों से मैल आती है, वो पसंद नहीं है। नाकों से क्या फिल्म आता है, मराठी में उसे शिंबुड़ कहते हैं, वो पसंद नहीं है। मुंह से खाएंगे तो ठीक है, लेकिन जब बाहर आएगा उल्टी, वो किसी को पसंद नहीं है। आगे से मूत्र और पीछे से विष्ठा किसी को पसंद नहीं है। सो इस शरीर के पीछे जो हम इतना लगे हुए हैं, उसका आउटपुट किसी को पसंद नहीं है, फिर भी शरीर के पीछे लगे हुए हैं इनपुट अच्छा करने के लिए। हम इनपुट बहुत अच्छा देते हैं शरीर को, प्रसाद देते हैं, प्रसाद में भी मज्जा मारते हैं, गुलाब जामुन देते हैं, रबड़ी देते हैं, रसगुल्ला देते हैं, पिज्जा देते हैं, बर्गर देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट इज कानों में से, नाकों में से, हर जगह से मैल निकल ही रही है। तो शरीर एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा एंटिटी है, आप कुछ भी करो, यस, वो ऐसा है जैसा एक बंदा जब कोटा में जाता है नीट या IIT जेई की एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो कितना भी अच्छा टीचर पढ़ाए, मैं 33% ही लाऊंगा। सो इस शरीर में आप कुछ भी अंदर डालेंगे तो यही आएगा बाहर। लेकिन भगवान का शरीर देखिए, भगवान का शरीर कैसा है? भगवान के शरीर से क्या क्या आ रहा है? सो दिस इज द एसेंस ऑफ हम कहां पर हैं भागवतम में। So हम टेक्स्ट 35, 36 देखेंगे। Oh Lord, your form is worshipable by performance of sacrifices, but souls who are simply miscreants are unable to see it. All the Vedic hymns, Gayatri and others are in touch with your skin. In your bodily hairs is the kusha grass. Your eyes are clarified butter. Your 4 legs are the 4 kind of fruitive activities. तो ये भगवान के शरीर का वर्णन है। और हम ये जो 37, 30, 39 ये भी भगवान के शरीर का वर्णन है। और वेरी इंटरेस्टिंगली 37 जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, द रिपीटेशन ऑफ योर अपीयरेंस इज द डिजायर फॉर ऑल काइंड ऑफ इनिशिएशन। इच्छा। 2 दिन पहले हमारा सौभाग्य रहा कि हम राधा गोपीनाथ मंदिर में थे
तो वहां पर भक्ति रसामृत महाराज श्रीमद् भागवत कक्षा दे रहे थे और उन्होंने कहा कि देखिए, इस भौतिक जगत में जीव का रहने का जो एकमात्र कारण है वो है इच्छा। इस भौतिक जगत से निकलने का एकमात्र कारण जीव का होगा इच्छा। भौतिक जगत क्यों बना, आध्यात्मिक जगत क्यों बना, एक ही कारण है, भगवान की इच्छा। सो इच्छा से ये सब कुछ चल रहा है और ये इच्छा लेकर के जीव इतना प्रबल है। देखिए जीव कितना शक्तिशाली है। इस एक जन्म के इच्छाओं से जीव अगले कितने करोड़ों जन्म अभी से तैयार कर रहा है। देखिए जीव कितना शक्तिशाली है। यस, जस्ट बाय माय डिजायर्स नाउ आई एम क्रिएटिंग अ बॉडी फॉर माय फ्यूचर अनलिमिटेड बर्थ्स एंड जस्ट बाय माय डिजायर नाउ, केवल मेरी इच्छा से मैं इस पूरे भौतिक जन्म मृत्यु के जंजाल से मुक्त हो सकता हूं। ये भी मेरी इच्छा का ही भाग है। सो जीव जब तक इच्छा, इसीलिए भगवान अपनी इच्छा में किसी को हस्तक्षेप करने नहीं देते और एक जीव के भी इच्छा में कभी वो हस्तक्षेप नहीं करते। जीव को शास्त्र, वैष्णव, इन सब माध्यमों से शिक्षा दी जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे हम देखते हैं कि ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा, ये शिक्षा की परंपरा है, वैसे ही भगवान हमें दीक्षित कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। In one sense, reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Vedas is getting Diksha from Krishna, because we are getting Shiksha from Krishna about how to live and how to live. Yes. कैसे जिए और कैसे इस जीवन को संपन्न करें और समापन करें, ये दोनों की शिक्षा हमें भगवान से मिलती है। इसीलिए हम सभी भगवान के द्वारा इन वन सेंस डायरेक्ट दीक्षित भी हैं। हम में से जो कोई भी भगवद गीता भागवतम को बैठ करके पढ़ रहा है, सुन रहा है, वह भगवान के द्वारा दीक्षित हो रहा है क्योंकि शिक्षा प्राप्त कर रहा है। The essence is now how do we utilize this शिक्षा। इस शिक्षा को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसे इस कान से लेके उस कान से निकाल देते हैं। इस कान में लोग यही करते हैं, इस कान से लेते हैं उस कान से निकाल देते हैं। इस कान में आके क्या करते हैं, लेकिन या हम इधर से लेके यहां अंदर लेके जाते हैं। यस, भौतिक जगत में सफलता ये यहां से सुन के यहां तक चीजों को लेके जाने की है। यस, दिमाग अच्छा होना चाहिए, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू मॉडिफाई, हाउ टू मैनिपुलेट, इसके लिए ये लगता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए यहां से प्रोसेसिंग यहां जाना चाहिए। हृदय यहां से पूर्ण तरह मूर्ख हो, कोई टेंशन नहीं है। उसे अ आ ई पढ़ना भी ना आता हो, कोई टेंशन नहीं है। हृदय कैसा है? यस, भौतिक जगत में सक्सेस इसका हार्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ये बुद्धि से। आध्यात्मिक जगत में सक्सेस इसका बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है, सब कुछ हार्ट से। सो द रेपुटेशन ऑफ योर अपीयरेंस इज द डिजायर फॉर ऑल काइंड ऑफ इनिशिएशन। भगवान बारंबार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? द सेम थिंग, ऑल काइंड्स ऑफ इनिशिएशन। भगवान आकर के क्या करते हैं? दर्शन देते हैं। कृष्णा's दर्शन इज कृष्णा's दीक्षा। कृष्णा आकर के हमें शिक्षा देते हैं, दैट इज ऑल्सो दीक्षा। भगवान आकर के हमें सेवा देते हैं, दैट इज ऑल्सो दीक्षा। इन एनी वेज when getting connected to Krishna in किसी भी तरीके से, ये दीक्षा है। सो आप आते रहते हैं। क्यों भगवान आते हैं? भगवत गीता बताती है। यस, यदा हि दायि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो धर्म संस्थापना हम देखेंगे, धर्म
ये इटर्नल है, भगवान भी इटर्नल है। यस, हम देखते हैं शास्त्रों का वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। यस, सो जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। अब धर्म तो भगवान की छाती से आ रहा है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उसकी रक्षा करने की क्या जरूरत है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके छाती से धर्म आ रहा है, तो भगवान की छाती से धर्म आ रहा है, उसकी रक्षा करने की क्या जरूरत है? दिस इज मटीरियल वर्ल्ड। सो मटीरियल वर्ल्ड मीन्स यहाँ पे हर जगह पर इंटरडिपेंडेंसी होगी। यस, इस इंटरडिपेंडेंसी में जीव भगवान के ऊपर भी निर्भर है। उस निर्भरता को पूरा करने के लिए भगवान आते रहते हैं। The repetition of your appearance is the desire for all kind of initiations. So इसके दो भाग हमने देखे। एक कि भगवान आते हैं और भगवान का नाम, शिक्षा, गुण, रूप, भगवान के विग्रह, यस, भगवान की शिक्षाएं शास्त्रों के माध्यम से, ये भगवान के द्वारा भगवान जीवों को दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। That is one aspect. And second aspect is, इस प्रकार से धर्म जो है या इस भौतिक जगत का अस्तित्व है जो इंटरडिपेंडेंट है, हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, उस डिपेंडेंसी को पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन। योर नेक इज द प्लेस फॉर 3 desires and your tusks are the result of initiation of the end of all desires. हम देखते हैं जब भी हम कुछ अन्न ग्रहण करते हैं तो हम दांतों के माध्यम से चबाते हैं। वो चबाना जो है, जब हम चबाते हैं किसी अन्न को, तो वो उसकी मूलवत स्थिति को खो देता है। पराठा खाया, चबा लिया, अब वो पराठा नहीं रहा, वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो गया और वो जो गोल चपाती या पराठा था वो अभी क्या हो गया, पूरा द्रव हो गया। सो और फिर वो खाया कैसे? गले के माध्यम से। गला नहीं हो तो सोचिए क्या होगा। यस, खाएंगे तो करके बाहर आ जाएगा। तो खाना है और फिर गला है। सो योर नेक इज द प्लेस फॉर 3 desires and your tusks are the result of initiation and end of all desires. पोषण की इच्छा, इसका अंत क्या है? दांतों के बीच में कुछ होना है। जैसे ही दांतों के बीच में कोई भी पोषक तत्व होगा, वो चबा करके अंदर जाएगा। सो जीव के अन्न क्या करता है? अन्न क्या करता है? अन्न 3 कार्य करता है। yes. अन्न एक तो जीव को शरीर में रखता है, शरीर को न्यूट्रिशन देता है, और तीसरा आयु वर्धन करता है। ये 3 कार्य अन्न करता है और ये तीनों इच्छाएं जीव के अंदर हैं। मेरा पोषण हो, मैं चिरायु रहूं, मेरा पोषण हो, मेरी चिरायु रहूं और मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो। ये हर जीव की इच्छा है। सो दिस इज द 3 kinds of desires. तो ये 3 इच्छाएं और उसका प्रोग्रेसिव कोरिलेशन कहां लगाया जा रहा है? भगवान के गले से और भगवान के टस्क से, भगवान के सूले से। Your tongue is the prior activities of initiation. Your head is fire without sacrifice as well as the fire of worship. जिह्वा हम पहले खाने को चबाने से पहले खाने को कहां रखते हैं? पहले खाना किसके संपर्क में आता है? जिह्वा के, फिर वो दांतों के बीच में जाता है। वैसे ही सारे जो सैक्रिफाइसेस हैं, सारे यज्ञ हैं, यज्ञों के पहले भगवान क्या है? भगवान का एक नाम है यज्ञ भुक। यज्ञ भुक मीन्स जो यज्ञ के माध्यम से खाते हैं। ये यज्ञ भुक, भुक मीन्स खाने वाले।
यहीं से इस संस्कृत शब्द से ही वो भूख मीन्स कटा हुआ है, यहां पे मराठी में वो भूख हो जाता है। सो भूख मीन्स हंगर, सो खाने की इच्छा। भगवान यज्ञ भूख और हम भूख, अरे भूख लागले का तुला, आर यू हंग्री? सो योर टंग इज द प्रायर एक्टिविटीज ऑफ इनिशिएशन। इसको दो चीजों में हम देख सकते हैं कि जब भी हम देखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं? तीन माध्यम से करते हैं। एक तो अपने स्पर्श से, जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज को भगवान के शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव महाराज शुद्ध हो गए। दूसरा है वाणी से, आप आज से शुद्ध हो जाइए, भगवान किसी को आशीर्वाद देते, वो वाणी आ गई, वो शब्द आ गया, जीव शुद्ध हो गया। तीसरा है इच्छा से, भगवान इच्छा करते हैं कि ये जीव शुद्ध हो जाए, जीव शुद्ध हो जाता है। सो भगवान की जो कृपा मिलती है वह हमें तीन माध्यमों से मिलती है, उनके शब्द, उनकी इच्छा और उनका स्पर्श। ऐसे ही हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो तीन माध्यम से करते हैं, काया वाचा मनसा। यस, काया वाचा मनसा। सो इट इज 3-3। यस, ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की सारी इच्छाएं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैं क्यों आता हूं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगिनां। 3 दिस 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए हम देखते हैं कि हम कभी भी किसी को भी सुधरने के लिए 3 चांस देते हैं, है कि नहीं? Why is that 3 so important? Because that 3 has been upheld by Krishna. एक ठीक है क्या? दूसरा यस ठीक, तीसरा एक लास्ट चांस। यस, इंसिडेंटली गोवा में हम जब हर मंदिर में जो उनको चढ़ावे आते हैं, बाद में मंदिर के लिए धन अर्जन करने के लिए उसके क्या बोलते हैं वो, नीलामी, क्या कहते हैं उसको पावनी। यस, उसका ऑक्शन होता है। सो उसमें बोलते हैं ओ पावता 1, पावता 2, पावता 3, 3। So you get 3 chances to give a higher bid. Yes. So ultimately, everything that number 3 is very important. Your head is the fire without sacrifices as well as the fire of worship. आपका जो मुख कमल है, आपका जो शिर है, ये सारे यज्ञों का मूर्तिमंत स्वरूप है। हम देखते हैं हमारे शरीर में बाकी कोई अवयव कट गया, कोई टेंशन नहीं, हाथ कट गया, पैर कट गए, पेट फट गया, सब ठीक है, लेकिन इधर कट गया तो कोई देयर इज नो वे। यस, उसी प्रकार से इन अ वेरी मटीरियल वे, नॉट एक्चुअली, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये साधुगण पूरे ब्रह्मांड से भगवान के शरीर का वर्णन कर रहे हैं, तो आपका जो सर है आपके पूरे मूर्तिमंत शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फायर विदाउट सैक्रिफाइस एज वेल एज द फायर ऑफ वर्शिप। तो भगवान यज्ञ चाहते हैं, और सो भगवान से रिलेट करने के लिए जीव के पास क्या है? यज्ञ है सबसे महत्वपूर्ण। और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सर। इसे कोरिलेट करते हुए वो सारे साधुगण महात्मा कह रहे हैं कि आपका सर जो है वो सारे यज्ञों का मूर्तिमंत स्वरूप है। योर लिविंग फोर्सेस आर एग्रीगेट ऑफ ऑल डिजायर्स। हमारे अंदर इच्छा है क्योंकि हमारे अंदर प्राण है। जैसे ही प्राण खत्म, इच्छा खत्म। ये क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि भगवान के अंदर भी वैसा ही है। ऑफ कोर्स भगवान के अंदर प्राण नहीं है, भगवान सच्चिदानंद है, लेकिन जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, योर लिविंग फोर्सेस आर द एग्रीगेट ऑफ ऑल डिजायर्स। सो प्राण जब तक हैं तब तक ये जीव सारी इच्छाओं की पूर्ति में लगा होगा। प्राण जैसे ही चले गए, फिर अगर उसकी इच्छाएं हैं तो भी वो जीव भूत बनेगा, फिर दूसरे किसी प्राण युक्त
भक्त शरीर में जाएगा भूत बन करके और उस शरीर से अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा। आप ये समझ रहे हैं? यस। हमारे पास इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति केवल प्राण कर सकता है, और प्राण मीन्स शरीर। जैसे ही प्राण चला गया इच्छाओं की पूर्ति खत्म हो गई। फिर अगर दूसरा शरीर नहीं मिलता, जब तक दूसरा शरीर मिलता है तब तक वेट, या फिर दूसरा शरीर मिल ही नहीं रहा है, तो देन व्हाट हैपेंस, वी ट्राई, द जीवा ट्राइज टू एंटर इनटू सम अदर शरीर, किसी और शरीर में घुसने का प्रयास करता है जिसके अंदर प्राण है, और उसके माध्यम से अपना इच्छा पूरा करता है। ओ लॉर्ड, योर सीमन इज द सैक्रिफाइस कॉल्ड सोम यज्ञ। सोम वेरी इंटरेस्टिंग। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं पृथ्वी पर सबसे जो टेस्टी द्रव है अमृत माना जाता है। इसी अमृत को स्वर्गलोक में सोमरस कहते हैं। तो सोमरस इज द हाईएस्ट प्लेजर गिविंग सब्सटेंस इन स्वर्ग। यस, इन मटेरियल वर्ल्ड फॉर अस द हाईएस्ट प्लेजर गिविंग सब्सटेंस इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन के समय जीव को सर्वाधिक आनंद आता है क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां उस कार्य में जुटी हुई हैं। तो इसलिए भगवान के वीर्य को सोमरस से कल्पना दी गई। इस स्वर्ग लोकों में सबसे अधिक जो आनंद देता है वो सोमरस है। पृथ्वी तल पर या भौतिक जगत में सबसे ज्यादा आनंद देता है वो प्रोक्रिएशन की एक्टिविटी है। Your growth is the ritualistic performance of the morning. Your skin and touch sensation are the 7 elements of Agnishtoma sacrifices. So, हम देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ को मॉर्निंग से क्यों रिलेट किया गया है? क्योंकि शरीर बढ़ता है जब हम सोते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे शिशु जब नवजात है वो सोता ही रहता है। यस, वो 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे सोता ही रहता है। जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी नींद कम हो जाती है। यस, 5th 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 10 घंटा 12 घंटा सोता है। वही हम जब 35 30 40 तक आ जाते हैं हम 6-7 घंटे सो लेते हैं। जो एल्डरलीज है उनको नींद नहीं आती। ऐसा नहीं है कि उनको इंसोम्निया है, बट द वे बॉडी चैनलाइजेस एवरीथिंग इज, अरे अब शरीर का ढलना है तो नींद की जरूरत ही नहीं है। इन वन सेंस, फ्रॉम शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शरीर हमें ज्यादा से ज्यादा भजन करने का एक स्वाभाविक नैसर्गिक मार्ग दिखा रहा है, समय दे रहा है। वो क्यों नींद कम आती है? अरे जो जीवन जी लिया है अब कम सोने का समय है ना, भजन करो। यस, बचपन में बहुत सोया, जवानी में भी बहुत सोया, अब जब अंतकाल पास आ रहा है नींद अपने आप कम होती है। प्रकृति इज गिविंग अस टाइम, यूटिलाइज योर टाइम फॉर भजन। सो वो न करके व्यक्ति क्या कर रहा है, अलग अलग माध्यमों से वृद्धावस्था में भी भोग करने का प्रयास कर रहा है। यस, सो योर स्किन एंड टच सेंसेशंस आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ अग्निष्टोम सैक्रिफाइस। ये 7 एलिमेंट्स क्या है ये मुझे भी नहीं पता। योर बॉडीली जॉइंट्स आर सिंबल्स ऑफ वेरियस अदर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड इन 12 days। सो हम देखते हैं कि यूजुअली कोई भी यज्ञ जब चलता है, जब महायज्ञ होते हैं तो लगभग उनकी अवधि 12 दिनों की होती है। 12 वर्षों के एक अवधि को तप कहा गया है। उसी 12 वर्षों तक हम 12 वर्षों तक क्या यज्ञ करेंगे, तो उस 12 वर्षों के यज्ञ को 12 दिन की अवधि में कंप्लीट किया जाता है। सो जो महायज्ञ होते हैं वो 12 दिन चलते हैं। Therefore, you are the object of all sacrifices called Soma and Asoma. ऐसे सारे यज्ञ
जो हमें सोम तक, यानी सोम और असोम के यहाँ पर दो मीनिंग्स हैं। सोम हियर मीन्स समथिंग दैट लीड्स टू प्लेजर, एंड असोम मीन्स नॉट नेसेसरली प्लेजर। सोम और असोम का दूसरा है कि सोम ये भगवान के द्वारा विधिवत स्थापित यज्ञ है, असोम ये ऐसे यज्ञ है जो भगवान के द्वारा स्थापित विधियों से अलग मार्ग जा करके हमें अलग रिजल्ट्स देते हैं। सो ये दो अर्थ हैं सोम और असोम के। एंड यू आर बाउंड बाय यज्ञस ओनली। आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को, जैसे हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति स्कूल में, या एक बच्चा, या फिर हाँ, एक गुड एग्जांपल वुड बी, एक व्यक्ति काम को लगता है। काम को लगने के बाद उसने कितने दिन में कितना काम किया, दिस इज द ओनली कंसिडरेशन हाउ ही विल बी पेड, है कि नहीं? आपने अपनी पत्नी का कैसे अच्छे ख्याल रखा, आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं क्या, उसको साल में एक बार घुमाने लेके जाते हैं क्या, आपका हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा, इस पर आपका पगार नहीं है। आप कितने दिन काम को आते हैं, आप कितना प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, इसी पर आपका पेमेंट है। सो एम्प्लॉयर इज बाउंड बाय ओनली आवर अटेंडेंस एंड प्रोडक्टिविटी। उसी प्रकार से भगवान जीव को किस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं इज डिपेंडेंट ओनली ऑन यज्ञ। जीव कितना यज्ञ करता है। इसीलिए कलियुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजन्ति सुमेधसः, इस यज्ञ के माध्यम से हम जितना इस यज्ञ में भाग लेंगे उतना हम एक्चुअली भगवान को प्रसन्न करेंगे। यस, सो ही इज बाउंड ओनली बाय यज्ञ। यस, एंड आवर duty towards him or expression of our love towards him is engaging in Harinam Yajna. Yes. X39, oh Lord, you are the Supreme Personality of Godhead and are worshipable by universal prayers, Vedic hymns and sacrificial ingredients. So भगवान की प्रार्थनाओं के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से, इन दो माध्यमों से उनकी उपासना होती है। So, भगवान की उपासना एक तो यज्ञ के माध्यम से होगी या प्रार्थनाओं के माध्यम से। So we offer our obeisances to you who can be realized by the pure mind free from all visible and invisible material contaminations. आपका जो अस्तित्व है वो केवल एक जीव जो पूरी तरह से शुद्ध हो गया है वही जान सकता है। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी कोट करते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम् येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। सो दृढ़व्रत भजन कब होगा? दृढ़व्रत भजन तभी होगा जब हमारे पाप क्षीण हो जाएंगे। क्या हम अपने जीवन में केवल अच्छे कर्मों को करके पाप शून्य हो सकते हैं? नहीं, पाप और पुण्य का ये जोखा चलता ही रहेगा। जब तक हम जी रहे हैं पाप पुण्य होता ही रहेगा। इसीलिए वी कम बैक टू द प्रीवियस वर्स, यू आर बाउंड बाय यज्ञ ओनली। हम ये नहीं देखते हम कितना पाप पुण्य कर रहे हैं, हम देखते हैं हम यज्ञ कितना कर रहे हैं। यस, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। So as sadhakas, we are definitely, हम चार नियमों का पालन करते हैं। Primary consideration is not because ये चार नियमों का उल्लंघन क्या करेगा? हमसे पाप करवाएगा। Primary consideration is ये चार नियमों का पालन मेरी साधना में दृढ़ता देगा। भक्तों में भी हम चार नियमों को पाप की दृष्टि से देखते हैं। नहीं, ये चार नियमों का कम लेखन है।
चार नियमों को पाप प्रवृत्ति के रूप से नहीं देखना है, यस, या पाप निवृत्ति के रूप से नहीं देखना है। चार नियमों को भक्ति प्रवृत्ति के रूप से देखना है। चार नियम को पाप निवृत्ति के रूप से नहीं, अरे ये सिन है, ये पाप कर रहा है, ये चार नियमों का भंग कर रहा है, नहीं। अरे आप चार नियम न पालन करते हुए भी पापी कर रहे हैं। आप आग जला रहे हैं राइस बनाने के लिए, पापी कर रहे हैं। श्वास ले रहे हैं, कितने सारे जीवात्मा शरीर में जा रहे हैं, पापी कर रहे हैं। चलते हुए हम देखेंगे बारिश चल रही है, अभी भी गोवा में बारिश है, तो छोटे छोटे सेंटीपीड्स होते हैं, कितनी बार हम उनको क्रश करते हैं, यस। या फिर हम गाड़ी चलाते हैं या चलते हैं तो पैरों के नीचे चींटियां आती हैं, क्या पाप कम कर रहे हैं हम? तो चार नियम पालन करके हम अपने आप को कौन सा 30 मार का समझ रहे हैं? चार नियमों का पालन एक तरफ, पाप निवृत्ति के रूप से देख रहा हूं, चार नियमों का पालन एक तरफ और एक चींटी की जान एक तरफ, विच हैज मोर वैल्यू? एक चींटी की जान हैज मच मोर वैल्यू देन ऑल ऑफ आवर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो जीवात्मा है, वो भगवान का अंश है, उसको हम मार रहे हैं सुबह दोपहर शाम बिना देखे हुए। केवल चार नियमों का पालन करना, इसको पाप निवृत्ति के रूप से देखेंगे तो एक चींटी को मार दिया तो जीवन भर का सारा चार नियम गड़बड़ हो गया। तो हम चार नियमों को पाप निवृत्ति के रूप से नहीं, भक्ति प्रवृत्ति के रूप से देखते हैं। यस, we offer our respectful obeisances to you as the supreme spiritual master of knowledge and devotional service. So we are in time. Thank you very much. Hare Krishna.